Mosmi, in fact, today the opposition too left no stone unturned to corner the BJP-led central government on a range of issues. In fact, they went on to the extent of saying that it's a special session, it's a new parliament building. Mallikarjun Kharge, for example, said, why don't you in fact bring back Raghav Chatta and other suspended MPs back to the House? Adhir Ranjan Chaudhary went on to say, acknowledge the work the Congress has done. So all of that played out in the parliament as well on the last day of the session. That's right, Sneha. Even though the occasion is a bit different, it's about a celebration of democracy, moving from the old to the new. 73 years of history made in the new old parliament building, and now new pages of history are going to be added in the new building. Even as tomorrow there would be a photo session with MPs, and the Prime Minister, if you see in his speech, said that this is not only about political differences. We've disagreed with each other. There have been discords. But at the larger level or the bigger picture is that we all MPs are a family, even if there's been bitterness. But overall, there is a 93-year-old MP in, naming the Samajwadi Party, Mr. Bark, saying that a 93-year-old MP is contributing to the parliament. There are MPs who are, very young, and they're here in the parliament. But the opposition didn't want to miss reading between the lines. The opposition feels that the special session could have been completely, done away with. Whatever business has been listed could have been addressed in the winter session. But then, Sneha, the upcoming assembly elections would also already be in place. And, the opposition feels that the BJP government is going to move in something big that can actually favor the BJP in the upcoming elections and could be a big trump card for it. So clearly, in fact, Anurag Bhadoria is right here with us, and we'll take his quick reaction. Mr. Bhadoria, how do you respond to the fact that, even when you're talking about celebration of 75 years of political history of this parliament and India, there have been lots of political digs and barbs that have been made. Prime Minister ने बोला रोने धोने का वक्त नहीं है. किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, मैं तो इस चीज को जानता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, 75 सालों के जो पहले प्रधानमंत्री जी हुए, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी उन्होंने चर्चा की, लोहिया जी की चर्चा की. मुझे लगता है उनके इस भाषण को बीजेपी के प्रवक्ताओं को खासकर सुनना चाहिए कि वो जो पूर्व के प्रधानमंत्री है, जिनके सम्मान पूर्वक जिनका नाम नहीं ले पाते, एक बात. दूसरी बात, अब जो नया पार्लियामेंट है, जब नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हाँ, जब पार्लियामेंट में नए लोग जा रहे हैं, तो अब नए पार्लियामेंट में कम से कम देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था पूरा नहीं किया, तो अब देश की जनता के साथ नए पार्लियामेंट में कुछ तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी या देश के असली मुद्दों पे चर्चा होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है. जो कहती है भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल नहीं करती है, जो वादे करती है उसको पूरा नहीं करती. इसलिए जनता ने इस बार नई पार्लियामेंट बनाई है कि 2024 में नए लोकसभा के सदस्य आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा. ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ. नए इमरजेंसी की भी याद दिलाई प्रधानमंत्री ने आप लोग को, और कहा कैश फॉर वोट स्कैम की भी याद दिलाई. कहीं ना कहीं विपक्ष में भी जो बिखराव है उसको साधने की कोशिश. मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो डीजल पेट्रोल कई बार 100 के पार हुआ, वो भी याद दिला देना चाहिए था कि जिस महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है. मणिपुर की जो घटना हुई है, जो महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, और जिस तरह की घटनाएं मणिपुर की हुई, जिस तरह की घटनाएं पहलवान महिलाओं के साथ हुई, उसके बारे में भी तो जिक्र होना चाहिए ना. जहां भारतीय जनता पार्टी चुप मार देती है. भारतीय जनता पार्टी जब किसानों की बात होती है तब भी किसान एक साथ. महिलाओं की तो बात हो रही है, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई है. प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 600 MPs है पार्लियामेंट में. तो आपको लगता है विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है? और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा कि ये सोच के कि पहले जब विरोध किया था आप लोग ने ओबीसी की मांग की थी, ओबीसी रिजर्वेशन की? हम लोग हमेशा से महिला सम्मान की बात करते हैं और हर वर्ग के महिला की सम्मान की बात करते हैं. और भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना ही कहूंगा कि वो करे, कुछ करती तो है नहीं. जैसे आपको हमेशा एक न्यूज दे दी जाती है, इंडिया भारत, अब इस पे बहस चलती रहती है, क्या कुछ हुआ?
वन नेशन वन इलेक्शन, कभी यूसीसी। तो ये जो उलझाने वाले मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी या जो सूत्रों से पता चलता है, सूत्र वूत्र छोड़िए, सरकार क्या कहती है ये सरकार को आके बताना चाहिए कि सरकार की ये मंशा है, सरकार ने ये सोचा है, तब तो अच्छी बात है। ये छुपाना चाहते होगी, आपको लगता है कि विपक्ष तैयारी ना करे इसलिए, या किस लिए आपको लगता है? मुद्दों से भटकाना है। अब 18 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगी तो ये बिल आने वाला है, वो बिल आने वाला है। आपके मीडिया जगत में तरह तरह की चर्चाएं, बताओ 15 दिन तक चर्चा ही चलती रही, ये होने वाला है। कितना समय बर्बाद होता है देश की जनता का। देश की जनता के लिए आखिर क्या होने वाला है ये बताए ना। देश की जनता को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? भाई आप पार्लियामेंट चलाने जा रहे हैं, मुद्दा बता देते, क्या है इसमें, क्या बुराई है भाई? रिजर्वेशन बिल का तो स्वागत करें। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बताए ना क्या करना चाहती है, बताए तो सूत्रों से नहीं, सरकार बताए सरकार क्या करेंगे या नहीं करेंगे स्वागत। अरे हम तो महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हमेशा महिला का सम्मान करते हैं, बट भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितना सम्मान कर रही है। अच्छा, आज कैबिनेट की बैठक भी है 6:30 बजे, आपको लगता है कि कोई बिल आ सकता है जिसको कैबिनेट मोहर लगाए? वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बिल लाए जिससे कि डीजल पेट्रोल की कीमत 30-40 रुपए हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बिल लाए जो हमारा युवा है देश को, उसको रोजगार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल लाए जो देश में महंगाई खत्म हो जाए। ऐसा बिल लेके आए जो हमारी महिलाओं का सम्मान हो। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करे ना जिससे आम जनता को कुछ फायदा हो। आम जनता की मतलब की तो बात ही नहीं हो रही है। जो बात हो रही है वो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, माने मुद्दों की बातें होती हैं। मतलब इस बारी तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वरना हर बारी आप लोग तो वॉकआउट करते हैं, हंगामा करते हैं। इस बारी ऐसा लग रहा है कि 5 दिन बातचीत होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार मुद्दों पे चर्चा करेगी, मुद्दों पे बात करेगी तो बात होगी। Mosmi, also if you could ask him on what the position really of the Samajwadi Party finally is on the women's reservation bill, given that they've opposed it staunchly. You know, Anurag Bhadoria must say, what is the SP going to do when it comes to the women's reservation bill, if at all the government brings it? Right, Sneha, I'll ask that question. Though I did ask and he yes, you did. gave But the you didn't bigger get an picture, answer. Yes. ये पूछना चाह रहे, we wanted to ask you कि what is the real position? Do you support the women reservation? Will you Samajwadi Party support it or not? ये सवाल इतने दिनों You know the women reservation bill. It had come in the Rajya Sabha. मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले आप ये सवाल पूछे थे, बताइए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतने दिन तक हाँ ना चला, 7-8 दिन तक चला, लोगों ने हाँ ना का जवाब दिया। फिर आप लेके आए इंडिया भारत, हाँ ना में जवाब दीजिए। अब हाँ ना में आपने 5-10 दिन काट दिए। फिर यूसीसी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे भैया हम तो हाँ ना में जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार से कहो कोई बिल सरकार उसमें से तो नहीं कुछ लेके आई। या वुमेन रिजर्वेशन की, जहां तक वुमेन सम्मान की बात होती है, तो मैंने पहले ही आपको बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी बताए ना क्या लाना चाहती है। लाना चाहती है तो क्या ड्राफ्ट बनाया है, समाज के सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए क्या ड्राफ्ट बनाया है, बताए जनता को। इसमें कोई चोरी की बात तो है नहीं। आप बताइए, हम तो महिला सम्मान के लिए हमेशा खड़े हैं। महिला जब सम्मान की हम आवाज उठाते हैं तो हम महिला सम्मान के साथ हैं। लेकिन आप बताइए आपने क्या किया है, क्या बनाया है? अच्छा, मतलब मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी जो राज्यसभा में पास हुआ है विमेन रिजर्वेशन बिल, उसमें कोई विमेन रिजर्वेशन बिल में ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है उस 1/3 में। तो क्या उसको लेके पेच फंसेगा, यही सवाल था। पर आपकी बात जायज है कि जब तक डिटेल्स नहीं हो आपके पास तो ड्राफ्ट नहीं होगा तब तक आप कैसे बताओगे किसी बात को? ऑलराइट, पॉइंट वेल टेकन। देयर यू आर Sneha. Anurag Bhadoria there by skirting the issue, though saying that we don't have the blueprint of what kind of a bill, whether it's going to be a rehashed one, whether it will be the same bill that was passed in the Rajya Sabha. Till we know that, we are only being subjected to yes and no's and queries like this, which have there can be numerous answers to it. So perhaps, the opposition is also aware, Sneha, that we come to that point that the government will get something big, as far as this session is concerned, to make it really truly historic and make the BJP, bolster its opportunities in the upcoming election. Well, absolutely interesting days ahead as far as this week is concerned. Mosmi, I'm going to thank you for the moment. Clearly, not answering the questions on the women's reservation bill was Samajwadi Party leader Anurag Bhadoria.